آج میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ عصمت چغتائی کی لکھی ہوئی ہے اور کہانی کا نام ہے امر بیل۔ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، آپ پورا سنیں اور اگر پسند آئے تو ایک لائک ضرور کریں۔ امر بیل۔ بڑی ممانی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ سارے خاندان کو شجاعت ماموں کی دوسری شادی کی فکر ڈسنے لگی۔ اٹھتے بیٹھتے دلہن تلاش کی جانے لگی۔ جب کبھی کھانے پینے سے نبٹ کر بیویاں بیٹیوں کی بری یا بیٹیوں کا جہیز ٹانکنے بیٹھتی تو ماموں کے لیے دلہن تجویز کی جانے لگی۔ اے ہے بھی، گھاس تو نہیں کھا گئی ہو؟ کنیز فاطمہ کی ساس نے سن لیا تو ناک چوٹی کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دیں گی۔ جوان بیٹے کی میت اٹھتے ہی وہ بہو کے گرد کنڈل ڈال کر بیٹھ گئیں۔ وہ دن اور آج کا دن دہلیز سے قدم نہ اتارنے دیا۔ نگوڑی کا میکے میں کوئی مرا جیتا ہوتا تو شاید کبھی آنا جانا ہو جاتا، اور بھئی شجن بھیا کو کیا کنواری نہیں ملے گی جو جھوٹا پتل چاٹیں گے؟ لوگ بیٹیاں تھال میں سجا کے دینے کو تیار ہیں، 40 کو تو لگتے بھی نہیں۔ اصغری خانم بولی، اوئے خدا خیر کرے، بوا پورے 10 سال نگل رہی ہو، اللہ رکھے خالی کے مہینے میں پورے 50 بھر کے۔ اللہ بیچاری امتیازی پھپھو بول کے پچھتائیں۔ شجاعت ماموں کی 5 بہنیں ایک طرف اور وہ نگوڑی ایک طرف، اور ماشاء اللہ سے 5 بہنوں کی زبانیں بس کندھوں پر پڑی تھیں، یہ گز گز بھر کی۔ کوئی مچیٹا ہو جاتا بس 5 ایک دم مورچہ باندھ کے ڈٹ جاتی، پھر مجال ہے جو کوئی مغلانی پٹھانی تک میدان میں ٹک جائے۔ بیچاری شیخانیوں میں سیدانیوں کی تو بات ہی نہ پوچھیے، بڑی بڑی دل گردے والیوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، مگر امتیازی پھپھو بھی ان 5 پانڈوؤں پر 100 کارووں سے بھاری پڑتی۔ ان کا سب سے خطرناک حربہ ان کی چنچناتی ہوئی برے کی نوک جیسی آواز تھی۔ بولنا جو شروع کرتی تو ایسا لگتا جیسے مشین گن کی گولیاں ایک کان سے گھستی ہیں اور دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں۔ جیسے ہی ان کی کسی سے تکرار شروع ہوتی، سارے محلے میں ترنت خبر دوڑ جاتی کہ بھائی امتیازی بوا کی کسی سے چل پڑی، اور بیویاں کوٹھے لانگتی، چھجے پھلانگتی، دنگل جانب ہلہ بول دیتی۔ امتیازی پھپھو کی 5 بہنوں نے وہ ٹانگ لی کہ غریب نکوبن گئیں، اور ان مجلی بیٹی گوری خانم اب تک کنواری دھری تھی۔ 36واں سال چھاتی پر سوار تھا، مگر کہیں نصیبہ کھلنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کنوارے ملتے نہیں، بہائے رنڈوے نہیں ہوتے۔ پہلے زمانے میں ہر مرد 3-4 کو ٹھکانے لگا دیتا تھا، مگر جب سے یہ ہسپتال اور ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں، بیویوں نے مرنے کی قسم کھا لی ہے۔ جیسے دیکھو عاقبت کے بوریے سمیٹنے پر تلی ہوئی ہے۔ بڑی ممانی کی بیماری کے دنوں میں ہی امتیازی پھپھو نے حساب لگا لیا تھا، لیکن ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہ تھا کہ دوہا جو کے لیے بھی کنویں میں بانس ڈالنے پڑیں گے۔ شجاعت ماموں کی عمر کا مسئلہ بڑی نازک صورت اختیار کر گیا۔ قمر آرا اور نور خالہ کے لیے تو وہ ابھی لڑکا ہی تھے، اس لیے وہ تو مارے ہول کے برسوں کی گنتی میں بار بار گھپلا ڈال دیتی، کیونکہ ان کی عمر کا حساب لگ جانے سے خود خالاؤں کی عمر پر شہ پڑتی تھی۔ لہذا 5 بہنیں بالکل مختلف سمت سے حملہ ور ہوئیں۔ انہوں نے فوراً امتیازی پھپھو کے نواس داماد کا ذکر چھیڑ دیا، جس کا تذکرہ پھپھو کی دکھتی رگ تھا، کیونکہ وہ ان کی نواسی پر سوت لے آیا تھا۔ مگر ہماری پھپھو بھی کھری مغلانی تھی، جن کے والد شاہی فوج میں برق انداز تھے۔ وہ کہاں مار کھانے والیوں میں سے تھیں۔ جھٹ پیترا بدل کر وار خالی کر دیا اور شہزادی بیگم کی پوتی پر ٹوٹ پڑی، جو کھلے بند خاندان کی ناک کٹوا رہی تھی، کیونکہ وہ روز ڈولی میں بیٹھ کر دھنکوٹ کے اسکول میں پڑھنے جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں اسکول جانا اتنا ہی بھیانک سمجھا جاتا تھا جتنا آج کل کوئی فلموں میں ناچنے گانے لگے۔ شجاعت ماموں بڑے معقول آدمی تھے، نہایت ستھرا نقشہ، چھررا بدن، درمیانہ قد۔ امتیازی پھپھو سارے میں کہتی پھرتی تھی کہ خضاب لگاتے ہیں، مگر آج تک کسی نے کوئی سفید بال ان کے سر میں نہیں دیکھا، اس لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ خضاب لگانا کب شروع کیا۔
یوں دیکھنے میں بالکل جوان لگتے تھے، واقعی 40 کے نہیں جچتے۔ اب ان پر پیغاموں کی بہت زور کی بارش ہوئی تو بکھلا کر انہوں نے معاملہ بہنوں کے سپرد کر دیا۔ اتنا کہہ لونڈیا اتنی چھچوری نہ ہو کہ ان کی بیٹی لگے اور ایسی کھسوٹ بھی نہ ہو کہ ان کی اماں لگے۔ بڑی ڈھونڈ مچی، آخر قرار رخسانہ بیگم کے نام پر پڑا۔ اوئی کیا خفیاتہ ہوا نام! امتیازی پھپھو کو کچھ نہ سوجھا تو نام ہی میں کیڑے نکالنے لگی، مگر بہنوں نے ایسا مورچہ کسا کہ ان کی کسی نہ سنی۔ لونڈیا 16 سے ایک دن زیادہ کی ہو تو 100 جوتے صبح 100 جوتے شام، اوپر سے حقہ کا پانی، مگر ان کی کسی نے نہ سنی۔ وہ اپنی گوری بیگم کی نو پار لگانے کے لیے خواہی نہ خواہی ڈنڈ مچاتی تھی۔ رخسانہ بیگم تھی کہ بس کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، جیسے پہلی کا نازک شرمایا ہوا چاند کسی نے اتار لیا ہو، شکل دیکھتے جاؤ پر جی نہ بھرے، تولو تو 5ویں کے بعد چھٹا پھول نہ چڑھے، رنگت ایسی جیسے دمکتا کندن، جسم میں ہڈی کا نام نہیں، جیسے سخت میدے کی لوئی پر گائے کا مکھن چپڑ دیا ہو، نسوانیت اس غضب کی جیسے درجن بھر عورتوں کا سنت نچوڑ کر بھر دیا ہو، گرم گرم لپٹیں سی نکلتی تھیں۔ شاید بقول پھپھو 16 برس کی ہوں گی، مگر 19-20 کی اٹھان تھی۔ بہنوں نے ماموں کو 50واں سال بتایا تھا۔ انہیں ذرا سا تکلف تو ہوا، مگر پھر ٹال گئے، کم سنی تو کوئی برا جرم نہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بے انتہا مفلس گھر کا بوجھ تھی۔ دونوں طرف کا خرچہ ماموں کے سر رہا۔ جب رخسانہ ممانی بیاہ کر آئیں تو انہیں غور سے دیکھ کر ماموں کے پسینے چھوٹ گئے۔ باجی یہ تو بالکل بچی ہے، انہوں نے بکھلا کر کہا۔ اوئے خدا کرے، ارے میاں تیل دیکھو، تیل کے دھار دیکھو، رساٹھا اور باٹھا، بیوی بیسی اور کھیسی 2-4 بچے ہوئے نہیں کہ ساری قلعی اتر جائے گی۔ گو موت میں نہ 16 سنگار رہیں گے، نہ یہ رنگ روغن، نہ یہ چھلاسی کمر رہے گی، نہ بازوؤں کا لوچ برابر کہ نہ لگنے کی، لگے تو چور کا حال۔ سو میں تو کہوں 10 سال میں بڑی بھابھی جان کی طرح ہو جائے گی، پھر ہم اپنے بیرن کے لیے 12.5 برس کی لے آئیں گے۔ نور خالہ چہکی۔ ہشت، ماموں شرما گئے۔ دوسری بیوی نہیں جیتی، اس لیے تیسری شمشا بیگم بولی۔ کیا بک رہی ہو؟ ہاں میاں، بڑے بوڑھوں سے سنتے آئے ہیں، دوسری تو تیسری کا صدقہ ہوتی ہے، اس لیے پرانے زمانے میں لوگ شادی گڑیا سے کر دیا کرتے تھے تاکہ پھر جو دلہن آئے وہ تیسری ہو۔ بہنوں نے سمجھایا اور ماموں سمجھ گئے، پھر جلد ہی رخسانہ بیگم نے بھی سمجھا دیا۔ 2-3 سال میں اچھے کھانے کپڑے اور عاشق زار میاں نے وہ جادو پھیرا کہ پہلی کا چاند 14ویں کا مہتاب ہو گیا۔ وہ چاندنی چٹکی کے دیکھنے والوں کی آنکھیں جھپک گئیں، پور پور سے شعائیں پھوٹ نکلی۔ شجاعت ماموں پر ایسا نشہ سوار ہوا کہ بالکل دھت ہو گئے۔ شکر ہے جلدی ہی پینشن ہونے والے تھی، ورنہ آئے دن کے دفتر سے غوطے ضرور رنگ لاتے۔ بہنوں کے لیے دیے ایک بھیا تھے، بڑی ممانی تو دلہن آپے ہی میں جی سے اتر گئی تھی۔ ان کی کمان کبھی چڑھی ہی نہیں، جب تک زندہ رہیں صورت کو ترستی رہیں۔ اولاد خدا نے دی ہی نہیں کہ ادھر جی بہل جاتا۔ میاں بہنوں کے چہیتے، بھائی صورت نہ دیکھے تو کھانا نہ پچے، دفتر سے سیدھے کسی بہن کے یہاں پہنچتے، رات کا کھانا وہیں کھاتے، پھر بھی روزانہ خوان سجائے رات تک بیٹھی راہ تکا کرتی۔ کسی دن اتفاق سے کھا لیتے تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا۔ آئے دن بہنوں کے یہاں ہنگامے رہتے، جھٹوں کو کبھی بھوج کو بھی بلا لیتی، مگر یہ بیچاری وہاں غریب الوطنی سی لگتی۔ سب نے بلانا چھوڑ دیا۔ شجاعت ماموں کو کبھی یار دوستوں کی دعوت کرنی ہوتی یا قوالی یا مجرے کی محفلیں جمتی تو بیوی کو پتہ بھی نہ چلتا، بہنیں سب انتظام کر دیتی، یہ انہی کے ہاتھ میں روپیے دے دیتے۔ کسی نے ممانی کو رائے دی کہ میاں کو قابو میں کرنے کا بس ایک گر ہے، ایسے کھانے کھلاؤ کہ کسی کے گھر کا نوالا منہ کو نہ لگے۔ بس جی، ممانی نے کھانے پکانے کی کتابیں منگائیں، لہسن کی کھیر اور بادام کے گلگلے، دم کا مرغ اور مچھلی کے کباب پکائے،
जिन्हें खाकर मामू ने यह फैसला किया कि वो इन्हें जहर देकर मारना चाहती हैं। ममानी खून थूक थूक कर मर गई, मगर नई नवेली का जादू तो आते ही चाहकर बोलने लगा। न कहीं आने की रहे न जाने की, न किसी का आना भाए, बस मियाँ है और बीवी, क्या बागो बहार सा भाई। बजाते में खरे बान की तरह बेरहम और बेमरवत हो गया। दुनिया उजाड़ हो गई। अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारी, गोरी बेगम से शादी करा दी। होती तो यूं भैया साहिबे कतना हो जाते। अय भाभी, भैया को आंचल में कब तक बांधे रखोगी? मर्द जात है, कोई झंडलाना नहीं कि हरदम कूले से लगाए बैठी हैं। लाख ताने दिए जाते हैं, अपने जोरू के हैं, कोई पड़ोसी के नहीं, बस तके जा रहे हैं बजरबट्टों की तरह। मामू वो मामू ही ना रहे। जी कैसी कव्वालियां और कैसे मुजरे। बस बीवी तगनी का नाच नचा रही है और आप नाच रहे हैं। अय बस और थोड़े दिन के चोचले हैं, पैर भारी हुआ नहीं कि सारा औलहना पा खत्म। एक ना एक दिन तो भाई का जी भरेगा। दिलों को तसल्ली दी गई। अल्लाह अल्लाह करके रुखसाना ममानी का पैर भारी हुआ तो अल्लाह तौबा, ना उल्टियां न तबीयत मांदी, चेहरे पर और चांद खिल उठे। क्या मजाल जो जरा सी आंखस आ जाए। वही शोखियां, वही अंदाज़े माशुकाना जो नई दुल्हनों के हुआ करते हैं, और मामू का तो बस नहीं चलता। उन्हें उठाकर पलकों में छुपा लेते, दिल निकाल के कदमों में डाल देते। जी से उतरने के बजाय वो तो दिमाग पर भी छा गई। पूरे दिनों में भी रुखसाना मवानी के हुस्न को गहन ना लगा। जिसमें फैल गया, मगर चांद दमकता रहा। पैर पर सूजन, ना आंखों के गिर्द हल्के, ना हिलने फिरने में कोई तकलीफ। चाबे के बाद चट से खड़ी हो गई। क्या मजाल जो कमर बाल बराबर भी मोटी हुई हो। वही कुंवारियों जैसा लचकदार जिस्म। भली बीवी के चाबे में बाल झड़ जाते हैं। इनके वो अदबदा के बढ़े कि खुद सर धोना दुश्वार हो गया। हाँ, बीवी के बदले जरा मामू झटक गए, जैसे बच्चा उन्होंने ही पैदा किया। थोड़ी सी तोंद ढलक आई। गालों में लंबी लंबी काशें गहरी हो गईं। बाल पहले से ज्यादा सफेद हो गए। अगर दाढ़ी ना बनी होती तो गालों पर चींटी के सफेद सफेद अंडे फूट आते। जब 2 साल बाद बेटी हुई तो मामू की तोंद अंदर आगे खिसक आई। आंखों के नीचे खाल लटकने लगे। निचली डाढ़ का दर्द काबू से बाहर हो गया। मजबूरन निकलवानी पड़ी। एक ईंट खिसकी तो सारी उम्र की चोलें ढीली हो गईं। इन दोनों ममानी की अकल डाढ़ निकल रही थी। शुजात मामू की 32 असली दांतों से ज्यादा हसीन थी। उम्र का इल्जाम नजला के सर गया। इम्तियाजी फुप्पू के हिसाब से रुखसाना मवानी 26 बरस की थी। वो अब भी वो कभी बच्चों के साथ धमाक चौकड़ी मचाने के मूड में आ जाती तो 16 बरस की लगने लगती। कई साल से उम्र का बढ़ना रुक गया था। ऐसा मालूम होता था कि इनकी उम्र उड़ेल टट्टू की तरह एक जगह जम गई है और आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। नंदों के दिल पर आरे चलते। वैसे भी जब अपने हाथ पैर थकने लगे तो जवानों की शोखियां मुंह जोर घोड़े की तरह, दुर्लत्ती की तरह कलेजे में लगती है। और ममानी तो साफ अमानत में खयानत कर रही थी। शराफत और भोल बिलनसाहट का तकाजा था कि वो शौहर को अपना खुदाए मिजाजी समझती, अच्छे बुरे में इनका साथ देती। ये नहीं कि वो थके मांदे बैठे हैं और बेगम बेतहाशी मुर्गियों के पीछे दौड़ रही हैं। अय भाभी, तुम पर खुदा की सलोर, ना सर की खबर है ना पैर की। रुदंगी बनी मुर्गियों खदेड़ रही हो। ऐ तो क्या करूं खाला, मुई बिल्ली। ओए लो सुनो, ऐ भी मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई? सुजन भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं। माशाअल्लाह, बड़ा भाई बाप बराबर। तुम भी मेरी बड़ी हो। खबरदार जो तुमने फिर मुझे खाला कहा। जी बहुत अच्छा। शादी से पहले रुखसाना ममानी की अम्मा इनकी दुपट्टा बदल बहन कहलाती थी। वही हुस्न और कमसीनी जिसने एक दिन शुजात मामू को गुलाम बना लिया था, अब इनकी आंखों में खटकने लगी। लंगड़ा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ नहीं दौड़ पाता तो चिढ़कर मचल जाता है कि तुम बेईमानी कर रहे हो। ममानी इनके साथ दगा कर रही थी।
कभी कभी तो इन्हें लड़कियों बारियों की तरह हंसता दौड़ते भागते देखकर इनके दिल में टीसें उठने लगती, वो जलकर कोयला हो जाते। लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन तन कर चलती हो, वो जहर उगलने लगे। हाँ, अब कोई जवान पट्टा ढूंढ लो। ममानी तो पहले हंसकर टाल देती, फिर झींप कर गुल्लार हो जाती। इस पर मामू और भी चिरागपा होते और भारी भारी इल्जाम लगाते। तब ममानी सन्नाटे में रह जाती, मोटे मोटे आंसू छलक उठते। अलगनी से दुपट्टा घसीट कर वो अपना जिस्म ढाक कर सर झुकाए कमरे में चली जाती। मामू का कलेजा कट जाता, इनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती। वो इनके तलवे चूमते, इनके कदमों में सर फोड़ते, इनके आगे नाक रगड़ते, रोने लगते। कमीना हूँ, हरामजादा हूँ, जूते लेकर जितने चाहो मारो, मेरी जान, मेरी रुखी, मेरी मलका, मेरी शहजादी। और रुखसाना ममानी अपनी रुपहली बाहें इनके गले में डालकर भों भों रोती। तुम्हारा आशिक जार हूँ मेरी जान, रिश्क हसद से जल जल कर खाक हुआ जाता हूँ। तुम तो नन्हे को गोद में लेती हो तो मेरा खून खौलने लगता है, जी चाहता है साले का गला घोट दूं। मुझे माफ कर दो मेरी जान। वो झट माफ कर देती, इतना माफ करती कि शुजात मामू की आंखों के हलके और अबदे हो जाते और वो बड़ी देर तक थके हुए खच्चर की तरह हाँपा करते। फिर ऐसे भी दिन आ गए कि वो माफ़ी ना मांग सके। कई कई दिन वो रूठे पड़े रहते, बहनों की उम्मीदें बंध जाती। भैया जान भाभी को कुढ़ा कुढ़ा के मार रहे हैं। मैं अब कोई दिन जाता है कि ये आए दिन की दांता कलकल रंग लाएगी। ममानी छुप छुप कर घंटों रोती, आंसू भरी आंखों में लाल लाल डोड़े और भी सितम ढाने लगते। सताया हुआ जर्द चेहरा सोने की गन्नी में किसी बेईमान सुनार ने चांदी की मिलावट बढ़ा दी हो। फीके फीके होंठ, माथे पर उलझी सी एक वाराफ्ता लट, देखने वाले कलेजा थाम कर रह जाते। हुस्न सोगवार को देख कर मामू के कंधे और झुक जाते और आंखों की वीरानी बढ़ जाती। एक बेल होती है, अमर बेल, हरे हरे सपोलिए जैसे डंठल, जड़ नहीं होती। ये हरे डंठल किसी भी सरसब्ज पेड़ पर डाल दिए जाएं तो बेल इसका रस चूसकर फैलती फूलती है। जितनी ये बेल फैलती है उतना ही वो पेड़ सूखता जाता है। जो जो रुखसाना बेगम के चमन खिलते जाते थे, मामू सूखते जाते थे। बहनें सर जोड़कर खुसर खुसर करती। भाई की दिन ब दिन गिरती सेहत को देखकर इनका कलेजा मुंह को आता था। बिल्कुल झरकट हो गए थे। गिठिया की शिकायत तो थी ही, नज़ला एक अलग अजाब जान हो गया। डॉक्टरों ने कहा खिजाब कतई मुवाफिक नहीं, मजबूरन मेहंदी लगाने लगे। बेचारी रुखसाना एक एक से बाल सफ़ेद करने के नुस्खे पूछती फिरती थी। किसी ने कहा अगर खुशबूदार तेल लगा डालो तो बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। दुखिया ने इतर सर में झोंक लिया। मामू की नाक में जो शमामतुल अंबर की मदहोश कुन खुशबू की लपटें पहुंची तो वो गलीज ऐब उन्होंने ममानी पर लगाए कि अगर बच्चों का ख्याल ना होता तो ममानी कुएं में कूद जाती। इनके बाल सफ़ेद होने की बजाय और मुलायम और चमकदार होकर डसने लगे। ममानी की जवानी के तोड़ के लिए मामू ने तिब यूनानी की तमाम माजूनी मकवियात, कश्ते और तेल इस्तेमाल कर डाले। थोड़े दिन के लिए इनकी भागती हुई जवानी थम गई, पाकपन लौट आया। ममानी ने कुछ दुनियादारी के दौपेच तो सीखे नाते खुदरू पौधा थी, कभी किसी ने बारीकियां ना समझाई। 28 साल की थी मगर 18 बरस जैसी ना तजुर्बेकार और अल्हड़पन था। मोटर बहुत चलाओ तो इंजन जल जाता है। दांव का रद्द अमल शुरू हुआ तो शुजात मामू ढह गए, एकदम बुढ़ापा टूट पड़ा। अगर वो जिस्म और दिमाग को इतना ना तकतकाते तो 62 बरस में यूं लुटिया ना डूब जाती। अब वो अपनी उम्र से ज्यादा लगने लगे। बहनें ज़ारो कतार रोती। हकीम डॉक्टर जवाब दे चुके थे। लोगों ने जवान बनने के तो लाखों नुस्खे इजाद किए, कबल अज वक्त बूढ़ा हो जाने की कोई दवा नहीं जो ममानी को खिला दी जाती। ज़रूर इन पर कोई सदाबहार किस्म का जिन या पीर मर्द आशिक था कि किसी तौर से इनकी जवानी ढलने का नाम ही ना लेती थी। तावीज़ गंडे हार गए, टोने टुटके चित हो गए। अमर बेल फैलती रही, बरगद का पेड़ सूखता रहा। तस्वीर हो तो कोई फाड़ दे, मुजस्समा हो तो पटक कर
चकना चूर कर दे। अल्लाह के हाथों का बनाया मिट्टी का पुतला अगर हसीन भी हो और जिंदा भी, इसकी हर सांस में जवानी की गर्मी महक रही हो, फिर कुछ बस नहीं चलता। इसके चढ़ते हुए सूरज को उतारने की एक ही तरकीब हो सकती है कि खाने की मार दी जाए। घी, गोश्त, अंडे, दूध कतई बंद। जब से शुजात मामू का हाजमा जवाब दे गया था, मवानी सिर्फ बच्चों के लिए गोश्त वगैरह मंगाती थी। कभी कभार एक नवाला खुद चख लेती थी। अब इससे भी परहेज कर लिया। सबको उम्मीद बंध गई, अब इंशाल्लाह जरूर बुढ़ापा तशरीफ ले आएगा। ऐ भाभी, ये क्या उछाल छक्का लौंडरियों की तरह मुझ शलवार कमीज पहनती हो और भी नन्ही बनी जाती हो। नंद कहती, भारी भरकम कपड़े पहनो कि अपनी उम्र की लगो। ममानी टका हुआ दुपट्टा और अजारा पहन लिया। किसी यार की बगल में जाने की तैयारी है? मामू ने कचकोए दिए। ममानी कपड़ों से भी ख्वाब खाने लगी। ऐ भी ये क्या, एक वक्त की नमाज पढ़ती हो, 5 वक्ता की आदत डालो। ममानी 5 वक्ता नमाज पढ़ने लगी। जब से मामू की नींद बूढ़ी हुई और नखरीरी हुई थी, तहज्जुद के वक्त से जागना पड़ता था। मेरे मरने की नफिल पढ़ रही हो? मामू बसोरते। दुबली तो थी, दिन रात की दानता कलकल से और भी धान पान हो गई। घी गोश्त से परहेज हुआ तो रंग और भी निथर आया। जिल्द ऐसी शफाफ हो गई जैसे कोई दम में ब्लोर की आर पार नजर आने लगेगा। चेहरे पर अजब सा नूर उतर आया। पहले देखने वालों की लार टपकती थी, अब इनके कदमों में सर पटकने को तमन्ना जागने लगी। जब सुबह सवेरे नमाज फजर की बात कुरान की तलावत करती तो इनके चेहरे पर हजरत मरियम का तकद्दुस और फातिमा जहरा की पाकीज़गी तारी हो जाती। वो और भी कमसिन और कुंवारी लगने लगती। मामू की कब्र और पास खिसक आई और वो इन्हें मुंह भर भर के कोसते और गालियां देते कि भांजे भांजियों को बाद वो जिनों और फरिश्तों को वरगला रही हैं, काबू में कर लिए हैं, इनसे जादू की बोटियां मंगाकर खाती हैं। खिजाब के बाद अब मेहंदी मामू की आंखें दुखाने लगी थी। मेहंदी लगाते तो छींकें आकर नजला हो जाता। वैसे भी इन्हें मेहंदी से घिन आने लगी थी। रुखसाना ममानी इनके बालों में मेहंदी लगाती तो बावजूद एहतियात के इनके हाथों में भी शमे लौ देने लगती। इनके हाथ देकर शुजात मामू को ऐसा मालूम होता जैसे मेहंदी में नहीं, ममानी ने इनके खून दिल में हाथ डुबो लिए हैं। वही हाथ जिन्हें वो कभी चमेली की मुंह बंद कलिया कहकर चूमा करते थे, आंखों से लगाते थे, अब शकरे के खूनदार पंजों की तरह इनके आंखों में घुसे जाते थे। जितना जितना वो इनकी मंडियां जमीन में पर घिसते, ममानी संदर की तरह महकती। बहनें घर से तिरमाल तैयार करके भाई को खिलाने लाती कि कहीं बाहज जहर ना खिला रही हो। अपने हाथ से सामने खिलाती, मगर इन खानों से मामू का हाल और पतला हो जाता। बवासीर की पुरानी शिकायत ने वो जोर पकड़ा कि रहा सहा खून भी निचोड़ लिया। अभी तक इस नामुराद कश्ते का असर बाकी था जो उन्होंने पिछले जाड़ों में मुरादाबाद के एक नामी गिरामी हकीम साहब का नुस्खा लेकर कई 100 की लागत से तैयार कराया था। नुस्खा बेहद शाही किस्म का था, जिसे मर्द खा लेता तो तनतनाकर खड़ा हो जाता, मगर मामू गोंदनी की तरह फोड़ों से लद गए। दुखिया ममानी घी को सैकड़ों बार पानी से धोती, इनमें गंधक और बहुत सी दवाएं कूट छान कर मिलाती। धड़ियों मरहम थोपा जाता, पतलियों में नीम के पत्तों का पानी औटाती और सुबह शाम पीप खून धोती। इनमें से चंद फोड़े मुस्तकिल नासूर बन गए थे और मामू को निगल रहे थे। फिर एक दिन तो अंधेरा ही हो गया। मामू बहुत कमज़ोर हो गए थे। बहनें बैठी भौज का दुखड़ा रो रही थी कि निजी बुढ़िया खुदा जाने कहाँ से आन मरी। फिर एक दिन तो अंधेरा ही हो गया। मामू बहुत कमज़ोर हो गए थे। बहनें बैठी भौज का दुखड़ा रो रही थी कि नज्जी बुढ़िया खुदा जाने कहाँ से आन मरी। पहले तो वो शुजात मामू को नाना जान समझकर इनसे फ्लर्ट करने लगी। किसी ज़माने में नाना जान इस पर बहुत मेहरबान रह चुके थे। बुढ़िया नामुराद की मत मारी गई थी। नाना जान को मरे 20 बरस हो चुके थे और वो अपने चीड़ भरी आंखों में पुराने ख्वाब जगाने पर मिस्र थी। बड़ी लेदे के बाद वो मामू का असल मुकाम समझी तो मरहुमा ममानी का मातम ले बैठी। हंसिए हंसिए क्या बुढ़ापे में दगा दे गई। अचानक इसकी नज़र ममानी पर जा पड़ी। ममानी सेहन में कबूतरों को दाना डाल रही थी।
अजब प्यारे अंदाज में वो गर्दन न्यूहाड़े बैठी थी, जैसे तस्वीर खिंचवा रही हूँ। कबूतर इनके बलूरें दमकती हुई हथेली को गुदगुदा रहे थे और वो बेख्तियार हंस रही थी। हाय मैं मर गई। बुढ़िया ने अपनी चपाती जैसा सीना कूट कर रुखसाना ममानी की तरफ हवा में बलाएं ली और कंपटियों पर 10वां उंगलियां चटर चटर चरखाई। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। बेटा तू चांद का टुकड़ा है, मैं जानू मीठा बरस लगा है। ऐ मियाँ, वो राजदारी के अंदाज में मामू के तरफ खिसकी। सौदागरों का मजरा बेटा विलायत पास करके आया है, अल्लाह कसम बस चांद और सूरज की जोड़ी रहेगी। थोड़ी देर तक तो किसी की समझ में ना आया कि बुढ़िया मुराद क्या बक रही है। सौदागरों का मजला बेटा जो विलायत पास था सबकी निगाहों में था। किसी को शबा ना हुआ कि नाशिदनी कतामा रुखसाना ममानी का रिश्ता लगाने की ताक में है। इमाम हुसैन की कसम मियाँ, मैं तो कंगनों की जोड़ी लूंगी। बात छेड़ दूं। बात जो वाजह हुई और पानी मरा तो भड़ों का छत्ता छिड़ गया। चारों तरफ से तोबे दगने लगी। हाय हाय, मुझ जन्म पिट्टी को क्या खबर। बुढ़िया स्लीपर पहनती रपटी बाहर की तरफ चलते चलते इसने मामू की पट्टी हुई सूरत पर एक मुश्तबा नजर डाली। मुंह पर तो साफ कुंवारपना बरस रहा है। इस दिन शुजात मामू ने कुरान उठाकर सबके सामने कह दिया कि ये दोनों बच्चे इनके नहीं, अड़ोस पड़ोस की मेहरबानियों का फल हैं, जिनसे रुखसाना बेगम ताक झांक क्या करती हैं। इस रात वो रोते रहे, कराहते रहे, अंगारों पर लौटते रहे। इस रात इन्हें बड़ी ममानी बहुत याद आई। इनके बाल कबर अज़वक़ पक गए थे। इनकी जवानी, इनका दुल्हनापा आंसू में बह गया। मैं और पारसाई का मुजस्समा, वफा की पुतली, इनके हिस्से का बुढ़ापा भी उन्होंने अपने वजूद में समेट लिया और शरीफ बीवियों की तरह जन्नत को सुधार गईं। आज वो होती तो ये दौर, ये सोजिश, ये सफ़ेद जड़ों वाले मेहंदी लगे बाल, ये रस्ते नासूर, ये तन्हाई हट जाती। फिर बुढ़ापा यूं ना दहलाता। दोनों साथ बूढ़े होते, एक दूसरे के दुख को समझते, सहारा देते। अमर बेल दिन दूनी रात चौगनी फैलती गई। बड़ के पेड़ का तना खोखला हो गया, टहनियां झूल गईं, पत्ते झड़ गए। बेल पास के दूसरे हरे भरे पेड़ पर रेंग गई। कैसा जानसोच समा था। शुजात मामू की मैयत सहन में बनी सवरी रखी हुई थी। बहनें खड़ी पड़ी पछाड़े खा रही थीं। मामू ने अपनी सारी जायदाद बहनों के नाम कर दी थी। रुखसाना मवानी सबसे अलग थलग दर से लगी बैठी थी। कहने वाले कहते हैं इतनी हसीन और सोगवार बेवा जिंदगी में कभी नहीं देखी। सफ़ेद कपड़ों में वो अजीब पुरसरार ख्वाब लग रही थी। रो रो कर आंखें मखमूर और बोझर हो रही थी। जर्द चेहरा पुखराज के नगीने की तरह दमक रहा था। पुरसों को आने वाले सब कुछ भूल कर बस इन्हें तकते रह जाते। इन्हें मरहूम की खुश नसीबी पर रश्क आ रहा था। मवानी पर बेपनाह बेबसी और अफसरदगी छाई हुई थी। खौफ और सेवड़ा सनेगी से उनका चेहरा और भी भोला लग रहा था। दोनों बच्चे इनके पहलू से लगे बैठे थे। वो इनकी बड़ी बहन लग रही थी। वो कुमसुम बैठी थी, जैसे कुदरत के सबसे मशाक फनकार ने अपने बेमिसल कलम से कोई शाहकार बनाकर सजा दिया हो।